A very wonderful morning to all my wonderful students of 11th grade. I hope that you all must be fit and fine at your places. And of course, you all must be working very, very hard for your approaching unit test. Okay, of course, in all the subjects you have to work very, very hard, my wonderful students. Okay, and of course I definitely hope that you all must have completed all your written work in your grammar as well as your literature notebooks. Okay, there are few students who have taken admission in Lawrence Academy just recently. Okay, but no problem, students, as before the unit test we will be revising the syllabus also. Okay, so today is our first revision class. Okay, today is your revision class and we will be revising the chapter Okay, we will be revising this chapter, The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. As students, you must have read, and of course I have also already explained that this story is a very emotional and sentimental saga of a bond between a grandmother and his grandson. Okay, of course the grandmothers generally also are very attached to their grandsons. Okay, they simply love them, right? And that is what is shown by the author Khushwant Singh to us. That particular special bond is never untied. Okay, no matter what the conditions are, no matter what the circumstances are, the bond between the two, the grandmother and the grandson, is very, very attached. Okay, you cannot simply untie it. Okay, now the story begins when, of course, the grandson was a child. Okay, now grandson as a child, okay, he lived okay, now grandson as a child, he lived in a village with his grandmother. Okay, and I definitely hope, students, you must be sitting with your practice notebooks so that you can make a note of this chapter. Okay, and now of course, students, the grandson, of course, when he was a child, lived with in village, of course. Okay, his parents lived in town. Okay, as you can see, of course, his parents lived in town. Okay,
Okay, now students, as you can see, his grandmother was very, very old, and it was impossible for the narrator to believe that his grandmother was once young and pretty. Okay, students, of course, it was impossible for the narrator to believe that his grandmother could be very beautiful, very young, okay, in the past era, okay, in her past age, okay, because now she was in her, of course, old age, right? And of course it was impossible for the narrator to believe this. Now students, what happens, okay, as the bond deepens, okay, in the morning, right, the grandmother used to wake up the grandson, okay, she used to get him ready, and while getting him ready she used to sing song prayers in a monotonous way. That is what grandson has described, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्रैंडसन, कि दादी जी जब मुझे तैयार करती थी तो मोनोटनस अपने सिंग सॉन्ग तरीके में मुझे प्रेयर्स सुनाया करती थी. अच्छा, ग्रैंड पेरेंट्स प्रेयर्स क्यों सुनाते हैं ग्रैंड चिल्ड्रन को, कोई बता सकता है? ऑफ कोर्स कि आजकल की जनरेशन कम से कम कुछ तो ईश्वर को याद करे, गॉड में बिलीव करे, है ना, क्योंकि हम लोगों की लाइफ कैसी है, हमारी मॉडर्नाइज लाइफ है, सुबह उठते ही हमें मोबाइल देखना है, मोबाइल पे अपने मैसेजेस देखने हैं, राइट, और अगर म्यूज़िक लगा भी लिया तो वो बहुत लाउड और पेपी म्यूज़िक होना चाहिए कि हमें बड़ा एनर्जाइज्ड फील हो, है ना, भजन या किसी तरह की आयतें या किसी तरह की गुरबानी, वो सब चीज़ें हम सुनना पसंद नहीं करते, है ना, वी आर द यंगर जनरेशन, राइट. बट हमारी जो ग्रैंड मदर थी वो अपनी प्रेयर्स को, ओके, ग्रैंडसन को तैयार करते करते सुनाया करती थी, ताकि कम से कम उनका जो ग्रैंडसन है वो इन्हें सुन सके. ओके, अब क्या होता है फर्दर हमारी स्टोरी में, व्हाट हैपेंस, ओके, लेट अस सी थ्रू. ओके, आगे चलते हैं चैप्टर में. इतना क्लियर है सबको? Students, you know, this story I can tell you in revision hardly in 5 minutes. ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है, मैं 5 मिनट में भी ये स्टोरी आपको सुना के ख़त्म कर सकती हूँ स्टूडेंट्स, ओके, लेकिन फिर रिवीजन का फ़ायदा क्या? व्हाट इज़ रिवीजन? ठीक है, क्योंकि मुझे हर वो माइन्यूट छोटा डीप पॉइंट आपको क्लियर करना है. क्वाइट पॉसिबल हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है, या हो सकता है कुछ ऐसा पॉइंट आ जाए जो आपने पढ़ा हो, ठीक है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, अपने यूटी के लिए प्रिपेयर योर चैप्टर्स वेरी वेरी डीपली. ओके, चलिए लेट्स मूव फर्दर. नाउ व्हाट हैपन्स, ओके, अब यहाँ देख सकते हैं आप सब, ग्रैंड मदर अकम्पनीज द ग्रैंडसन टू स्कूल. ग्रैंड मदर हमारी अपने ग्रैंडसन के साथ स्कूल जाया करती थी, ठीक है. जितनी देर तक ग्रैंडसन स्कूल में पढ़ा करते थे ना स्टूडेंट्स, तब तक हमारी जो ग्रैंड मदर हैं, ठीक है, वो टेम्पल में बैठ के, क्योंकि टेम्पल और स्कूल एक साथ था, अटैच था, ठीक है, तो तब तक हमारी जो ग्रैंड मदर हैं वो टेम्पल में बैठ के क्या किया करती थी, स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी. स्क्रिप्चर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? होली बुक्स, है ना. होली बुक्स क्या होती हैं? जैसे गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल एंड सो ऑन, ठीक है. तो वो स्क्रिप्चर्स हमारी ग्रैंड मदर पढ़ा करती थी, ठीक है. अब स्कूल ओवर हुआ, ठीक है, स्कूल ओवर हुआ तो क्या होता था,
ओके जब स्कूल से वापस आया करते थे, ओके जब वो वापस आया करते थे तो शी यूज टू फीड हाँ स्ट्रीट डॉग्स, ठीक है, जो रास्ते में जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं ना, गलियों में जो घूमते हैं डॉग्स, ठीक है, तो उन्हें हमारी ग्रैंड मदर रोटी खिलाया करती थी, ठीक है, वाइल कमिंग बैक फ्रॉम द स्कूल। तो कुछ इस तरह से उन दोनों की ज़िंदगी चल रही थी, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? Okay, the first part of course of this chapter gives us a glimpse of their bond, okay, and of course जो grandmother थी, ठीक है, she was very very old, ठीक है, एंड ग्रैंडमदर के साथ साथ ग्रैंडफादर का भी जिक्र किया है हमारे नरेटर ने। उन्होंने ये बताया है चैप्टर में दैट ग्रैंडफादर को उन्होंने देखा तो नहीं था, बट उनका एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट, ठीक है, एक बहुत बड़ी पिक्चर ओके ड्राइंग रूम में टंगी हुई थी, जिसमें उन्होंने टर्बन पहना हुआ था, कुर्ता पहना हुआ था, एंड उनकी जो वाइट बियर्ड है, ठीक है, जो वाइट दाढ़ी है वो उनके चेस्ट के पार्ट को कवर कर रही थी, ठीक है। एंड हमारे नरेटर बिल्कुल ये विश्वास करने को तैयार नहीं थे कि ग्रैंड मदर की इनसे शादी हुई थी, ओके क्योंकि वो इतने ओल्ड दिखते थे, हमारे नरेटर को लगते थे कि मानो इनके चिल्ड्रन तो हो ही नहीं सकते, ओनली ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं, ओके। सो दिस इज हाउ okay the mind of the narrator works, okay, and of course on the other hand the grandmother was having innumerable crisscross lines। जब एजेड हो जाते हैं अपने ग्रैंडमदर फादर को देखा है कैसा स्किन हो जाता है उनका, लूज हो जाता है, ब्यूटी नहीं होती है, फिजिकल ब्यूटी कुछ नहीं होती है, सब चली जाती है एज के साथ। द रियल ब्यूटी इज इनसाइड यू, आपके अंदर होती है स्टूडेंट्स, सो डेवलप दैट। Physical beauty you can develop which will leave you unfortunately, okay, but your inner beauty will stay with you till the time of your death, आपके मरने तक आपके साथ रहेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए that we must develop the inner beauty because outer beauty is of course immortal, okay। Now let us move further in the chapter। अभी इसी तरह से उनकी लाइफ जो थी चल रही थी स्टूडेंट्स, ओके, द विलेज लाइफ, ओके, बट अब क्या होता है स्टूडेंट्स, देयर कम्स अ टर्निंग पॉइंट, ठीक है, एक टर्निंग पॉइंट इन दोनों की जिंदगी में आता है। किन दोनों की जिंदगी में? ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडसन की ज़िंदगी में, ठीक है, ये एक टर्निंग पॉइंट आता है। टर्निंग पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स? एक ऐसा ज़िंदगी का पड़ाव जहाँ से आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाती है, ठीक है, ओके। अब ये टर्निंग पॉइंट क्या था? ओके अब ये टर्निंग पॉइंट देखिए क्या है स्टूडेंट्स, दे वर कॉल्ड टू टाउन, यस स्टूडेंट्स, ओके, उन्हें शहर में बुला लिया गया था स्टूडेंट्स, ओके, बात समझ आई? उन दोनों को ही यानी कि ग्रैंडमदर और ग्रैंडसन को शहर में बुला लिया गया था, एंड वहाँ जाकर हमारे ग्रैंडसन इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना शुरू कर चुके थे, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्या होता है, ग्रैंडमदर जा सकती थी क्या उस स्कूल में? कोई स्कूल होता है टेम्पल से अटैच? नहीं, ओके। तो अब हमारी ग्रैंडमदर क्या हुआ, सिर्फ उन्हें बस स्टैंड तक मोटर बस जहाँ पर आती थी वहाँ तक उन्हें ड्रॉप करके आती थी। अच्छा, और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में क्या पढ़ाया जाता है बताइए? अबाउट इंग्लिश, अबाउट साइंस, अबाउट मैथ्स, अबाउट SST, ओके, अबाउट लिटरेचर, okay, either in any language, Hindi or English, okay, that's it, but there's no teaching about God, okay, but in village school
the grandson was taught about God also. Okay, right? Let us move further with this point. ओके अब देखिए स्टूडेंट्स, वहाँ पर इंग्लिश स्कूल्स में ना तो मॉरल टीचिंग्स दी जाती थी और ना ही गॉड के बारे में कोई टीचिंग दी जाती थी। मॉरल टीचिंग्स क्या होती हैं? अच्छी बातें बताना, अच्छे आचरण बताना, अच्छी बातों को बताना कि कंडक्ट कैसा होना चाहिए, मैनर्स कैसे होने चाहिए, है ना, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनसे तेज़ आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए, है ना, सो ऑन, दीज आर ऑल मॉरल टीचिंग्स। ठीक है, तो ये सब बातें इंग्लिश स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती थी। ओके, तो दिस मेड द ग्रैंड मदर वेरी डिसहार्टेंड। तो हमारी जो ग्रैंड मदर थी वो इस बात से बहुत ज़्यादा सैड थी। ओके, शी वाज समहाउ डिसहार्टेंड विद दीज टाइप्स ऑफ टीचिंग्स ऑफ द इंग्लिश स्कूल। ठीक है, अब इंग्लिश स्कूल की ऑफ कोर्स इस तरह की टीचिंग से क्या होता था, देखिए बच्चा तो बिजी हो जाता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर पढ़ता है, ठीक है, ही गोज इन द मॉर्निंग, कम्स बैक एट 2 or 3 o'clock, देन ही हैज़ हिज कोचिंग क्लास, हिज ट्यूशन क्लासेस, देन हिज ओन होमवर्क। तो क्या हुआ, बच्चा तो बिजी हो गया। ठीक है, बट ग्रैंड मदर के साथ अभी रूम सेम है, ठीक है, एक ही रूम में रहते हैं दोनों एक साथ, उन दोनों का रूम अभी तक सेम है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत बातचीत उनमें चलती है। ठीक है, लेकिन अब हमारा जो ग्रैंडसन है वो अपनी पढ़ाई में बिजी हो चुका है, as of course he has started his own path of life and he is studying in English medium school, so he had to work very hard, he had to take the coaching classes, he had to complete his projects and so on. Okay, तो क्या बॉन्ड खत्म, रिलेशनशिप ओवर, गैप आ गया क्या? नो, द बॉन्ड इज वेरी मच देयर, द रिलेशन इज वेरी मच देयर। ठीक है, ग्रैंड मदर ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती थी, शी इज़ एन ऑसम ग्रैंड मदर, वो इंटरफेयर नहीं करती थी और ना ही वो शिकायत करती थी। ओके, शी नेवर कंप्लेन्ड टू एनी वन नॉर शी सेड एनी थिंग टू हर ग्रैंडसन। ओके, शी वॉज वेरी कंजीनियल। होल डे क्या करती थी ग्रैंड मदर, होल डे यू नो हर वन हैंड वॉज केप्ट ऑन हर वेस्ट। ठीक है, वो थोड़ा झुक कर चलती थी। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स हमारे नरेटर ने बताया है दैट शी वॉज एन एक्सपेंस ऑफ वाइट सेरेनिटी। ओके, शी वॉज एन एक्सपेंस। ओके, शी वॉज एन एक्सपेंस ऑफ वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस। ठीक है, एक्सपेंस क्या होता है, जहाँ तक नज़र जाए, ठीक है, विशाल, फैला हुआ। ठीक है, वो क्या थी, एक तरह की वाइट सेरेनिटी थी। वाइट मतलब वो वाइट कपड़े पहना करती थी, तो इसलिए उन्हें वाइट कह के रिगार्ड किया है हमारे नरेटर ने। ठीक है, सेरेनिटी क्या होती है, चारों तरफ की ओके एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट, होली एनवायरनमेंट, डिवाइन एनवायरनमेंट। ठीक है, जिस व्यक्ति के होने से कोई शोर ना हो, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा ना हो, पूरी तरह से सेरेनिटी हो, प्योरिटी हो, होलीनेस हो। ठीक है, इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है हमारी ग्रैंड मदर को। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स ऐसा लगता था मानो वो जो सांस लेती है उस सांस लेने में भी बहुत शांति है।
ओके किसी तरह का कोई शोर नहीं, किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं स्टूडेंट्स. ओके दिस इज़ हाउ द ग्रैंड मदर यूज टू लिव हर लाइफ इन टाउन. ठीक है, गाँव में क्या करती थी, क्या किया गांव में, मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वे में ज़ोर ज़ोर से प्रेयर करती थी. यहाँ आके क्या प्रेयर छोड़ दी? टेल मी, आपने तो पढ़ा है चैप्टर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी वो प्रेयर करती थी सारा दिन. ओके होल डे. कैसे करती थी? ओके पूरा दिन वो अपनी रोज़री बीड्स पे काउंट करती थी. रोज़री क्या होती है? जो माला होती है ना, माला जपते हैं हम लोग, ठीक है, उसे रोज़री कहते हैं. ठीक है, चाहे वो जपजी साहिब हम जपें या आयाते जपें या राम नाम जपें, वो कुछ भी हो. ठीक है, तो रोज़री जो है वो सारा दिन रोज़री पर प्रेयर किया करती थी. और कैसे ज़ोर ज़ोर से करती थी? नो स्टूडेंट्स, she used to pray in inaudible manner. Inaudible क्या होता है? Sorry, this should be A. Wait, I'll write the correct spelling. Just a moment. Okay, she used to do the prayer in इनऑडिबल मैनर. ठीक है, यानी कि उनके लिप्स बस चलते हुए दिखाई देते थे, वो मन ही मन प्रेयर करती रहती थी स्टूडेंट्स. ओके बात समझ आई मेरे डियर स्टूडेंट्स, किस तरह से हमारी ग्रैंड मदर टाउन में अपनी ज़िंदगी जी रही हैं. ठीक है, ओके बात समझ आई, राइट. दिस इज़ अ वेरी लेंदी चैप्टर. अभी एक दिन में तो रिवीजन नहीं होगा, फिर आप MCQs कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, है ना, मुश्किल होगा आपके लिए, है ना. अच्छा, अभी इसको में से थोड़ा सा एक दो MCQ के आपको मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ. ठीक है, इतना चैप्टर हमने समझ लिया, उनकी टाउन की लाइफ कैसी थी एंड विलेज लाइफ उनकी कैसी थी. ठीक है, अभी इसमें से क्या होगा, बिकॉज दिस इज़ योर रिविजन. सपोज हमें कोई MCQ देना है, सपोज आपको MCQ हम दे दें, हमने दिया, ठीक है, या कोई फिलअप दिया. ठीक है, ऑप्शंस दे देते हैं. इन टेम्पल, ओके अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, ग्रैंड मदर सिंग प्रेयर्स इन सिंग सॉन्ग मैनर इन, यानी कि गा गा कर सिंग सॉन्ग मैनर में हमारी ग्रैंड मदर कहाँ प्रेयर करती थी? बताइए, ऑप्शंस देखिए. टेम्पल में नहीं, टाउन होम में यानी कि शहर वाले घर में नो, विलेज होम यस, क्योंकि अगला ऑप्शन भी नहीं है. ठीक, इंग्लिश स्कूल. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन दिस इज करेक्ट. ओके इस तरह से स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से हम एवरी डे, बिकॉज 11th को है हमारा एग्ज़ाम, हमारे पास एक लिटरेचर चैप्टर है, एक पोइट्री है, एक राइटिंग स्किल है. ठीक है, तो हम उसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रोज़ रिवाइज करेंगे. आज की रिवीजन क्लास में काफ़ी है इतना. ओके तो आप दोबारा गो थ्रू कर लें चैप्टर को. इस तरह से भी MCQs आ सकते हैं, फिलअप्स आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स आ सकते हैं. ओके सो बी प्रिपेयर्ड. ओके एंड डू नॉट वरी, you will score good marks. Okay, that is all from my side today.
Okay, have an awesome day ahead. God bless you all, my dear students.